Okay, Assalamu alaikum. Good afternoon, students. Can you hear me? This is Dr. Shabkhez here. Okay, thank you very much. Okay, so we will start our discussion on transport of oxygen and carbon dioxide today. We need to finish this chapter in today's lecture and tomorrow's lecture. So to start with, oxygen is transported mainly in combination with hemoglobin, right? We all know that, right? That mainly it is transported in the blood in combination with hemoglobin. And hemoglobin happens to be our major buffer of the blood, of major buffer present in the blood is hemoglobin as far as the oxygen is concerned. And there is that 30 to 100 times more oxygen is transported by hemoglobin than had it been transported only in dissolved form. It is transported in dissolved form, but when it is combined with hemoglobin, it is 30 to 100 times more oxygen which is carried through hemoglobin than had it been that it was only being transported by in the dissolved form, right? So in dissolved form, there is not significant amount of oxygen that is being transported. Rather, the significant amount is being transported through hemoglobin. Now, oxygen and food nutrients combine to produce energy, and carbon dioxide is produced. So when we take in the oxygen, it oxidizes the nutrients, and then the ATP is formed, energy is produced in the cellular respiration, and then this carbon dioxide is transported in combination with different chemical substances, and that combination accounts for at least 15 to 20 folds more than in the dissolved form. So again, that means that oxygen and carbon dioxide both are transported in combination with some other proteins or with some other compounds, as well as in the dissolved form in the body fluids, right? In the body fluids, rather in the blood, we can say. Now, but the significant thing is that it is both these gases are transported in combination with different chemical substances. In case of oxygen, these are basically hemoglobin. In case of carbon dioxide, hemoglobin is one of those, right? And some is in dissolved form, and then there are few other compounds, one or two other compounds, which take care of it. So when we will go to carbon dioxide, because basically in today's lecture, we will mainly be concerned with oxygen, right? So moving on, transport of oxygen from the lungs to the body tissues, right? The first thing that was ventilation, that was the transport of the whole atmospheric air from the atmosphere into the lungs, into the alveoli, right? And then the next thing would be the transport of oxygen from the lungs to the body tissues. The ventilation, we finished that in my last lecture, ventilation, that how the air is carried from the atmosphere through the nose, through the respiratory passages into the alveoli. And now we will be talking about the transport of oxygen from the alveoli to the body tissue, right? Now, for this, partial pressure happens to be the main determinant. Partial pressure of the oxygen, the partial pressure difference in different compartments. What is the partial pressure in the alveoli? What is the partial pressure in the pulmonary blood? What is the partial pressure in the arterial blood? And what is the partial pressure in the tissues? So these are going to be the major determinants that how the transport of oxygen happens right from the lungs up to the tissues, right? Now, the partial pressure is more in alveoli than the blood. And what is the partial pressure in alveoli? Can somebody elaborate on that? Can somebody tell me that?
usually, what is the normal partial pressure in alveoli? It is 104 mm Hg, right? So it is much more as compared to tissues. In tissues, it is usually on average, it is 23 mm Hg inside the tissue, right? Now, reverse is true for carbon dioxide, not in terms of not in terms of figures that I have given you, but yes, the concept is that there would be more carbon dioxide in the tissues, and there would be there would be more partial pressure of carbon dioxide in the tissues, and there would be gradually that partial pressure will keep on decreasing. It would be less in arterial blood. It would be again less in pulmonary blood, and it would be again less in alveoli, right? So that is the reverse order. While talking about oxygen, it was maximum in alveoli, right? So both these gases are transported in the reverse order. So transport of oxygen and carbon dioxide by the transport of oxygen and carbon dioxide by the blood depends on both diffusion and flow of blood. What is the rate of diffusion at a given time, and what is the flow of blood at a given time? Both these factors would determine the transport of what would be the rate of transport of oxygen or carbon dioxide, right? So we will see them one by one. Now, transport of oxygen, the first step was rather that we learned in the last lecture, was the transport of oxygen from the atmosphere into the alveoli, right? That we are done with. Now, transport of oxygen from the alveoli to the pulmonary capillaries, right? Because the pulmonary capillaries are the ones which are carrying deoxygenated blood, and once they get oxygenated, right? Their partial pressure changes. So that is what is being shown in this diagram. If you look at this over here, this is the alveolus, and the partial pressure in alveolus is 104 millimeters of mercury. Now this is the pulmonary capillary, and when the blood, the arterial blood, which is coming from the tissues, when it enters the pulmonary capillaries, right? When it enters the pulmonary capillaries, its partial pressure of oxygen is 40 millimeters of mercury, right? So there is a difference of 64 millimeters of mercury, a partial pressure difference of 64 millimeters of mercury, which is a huge partial pressure difference. That facilitates the diffusion, right, from the alveolus into the pulmonary capillaries, because we have more partial pressure in the alveoli, and we have less partial pressure in the pulmonary capillaries, right? So you see what is happening. If you look at this graph below, it is showing blood PO2, right? It is partial pressure of blood. Now you see that it starts from 40. As it enters here, it starts from 40, and as it goes along, as the blood goes along up till this point, almost the 1/3 of the length of the capillary, by about the 1/3 of the length of the capillary, the exchange of oxygen between alveoli and the pulmonary capillary is complete. Do you appreciate this fact? Because you need to appreciate this fact. This is a very important fact, that only up till the 1/3 of the pulmonary capillary, the exchange has been completed. So what is the use of the rest of this? The 2/3 of the capillary, 2/3 of the length of the capillary, what is the use of this? Can somebody imagine that? Because when we are at rest, the exchange between the alveolus and the pulmonary capillary is complete. The gaseous exchange between the alveolus and the pulmonary capillary is complete by the time the blood flows
just through the first 1/3 of the capillary. So what is the use of this 2/3? When will this come into play? When will it be utilized? It would be utilized during exercise. Okay? It would be utilized during exercise. Very good. What's his name? Vera Hussain? Vera? No, Vera. Vera Hussain. Okay, excuse me if I'm pronouncing it wrong, but you have done a good job, right? So that is during exercise. So nature has given this, as I have told you before, that nature has given us safety factors, right? Nature has given us a mechanism where we would have the minimum perfusion, where we will have the minimum amount of nutrients and blood flow available, right? But in time of need, the extra safety factor will come into play. So that is what is happening over here, right? So what happened that when the blood entered the capillary, it was 40 mmHg, and by the time it reaches the 1/3 of the length of the capillary, it is already 104 mmHg. If you look at these arrows, they will show you, right? PO2 coming from the oxygen coming from the alveoli into the pulmonary capillary. The arrow is larger as compared to the O2 that is being transported from the pulmonary capillary into the alveolus. Remember that diffusion is a two-way process. We need to look at the net rate of diffusion, right? Even up till this point, this arrow is still larger and this arrow is still smaller. But by the time we reach the 1/3 of the capillary, both these arrows are same in length. And then this the length of arrows, it remains constant throughout, right? So that shows that the exchange of oxygen, or for that matter, carbon dioxide, was complete by the time the blood reached the 1/3 length of the capillary, and that is at rest, right? The rest of the 2/3 would come into play, or that would be utilized during exercise. Okay? Okay. Now, the person's body may require as much as 20 times the normal amount of oxygen, right? And that would be during exercise. Because of increased cardiac output, blood remains in the pulmonary capillary for half the normal time. जब cardiac output बढ़ती है और during exercise, लेकिन blood flow भी बढ़ जाता है, तो blood जो है वो capillaries में सिर्फ half the normal time के लिए रहता है. जो at rest time होता है उसका, उससे half हो जाता है. लेकिन फिर भी blood जो है, it becomes almost saturated with O2 by the time it leaves the pulmonary capillaries. ठीक है? जब ये pulmonary capillaries से निकलता है तो ये fully saturated होता है blood. ठीक है? ये किस वजह से है? Because of the great safety factor for diffusion of the O2 through the pulmonary membrane. ये एक और safety factor अब जिसकी बात कर रहे हैं, वो safety factor ये है कि हमारी जो diffusing capacity of the membrane है, pulmonary membrane है, वो बढ़ जाती. ठीक है? Not only के जो length of the capillary है वो use होती है, 2/3 जो remaining length of the capillary है वो use होती है, बल्कि the diffusing capacity of the pulmonary membrane, वो membrane क्या है? That is the a membrane जिसको हमने पढ़ा था, उसके 6-7 उसके फैक्टर्स थे, 6-7 उसके लेयर्स थी उसकी. तो वो लेयर्स जो हैं वो किस किस के दरमियान में थी? पल्मोनरी कैपिलरी और एल्वेओलाई के दरमियान. ठीक है? तो उसके दरमियान में जो उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है. ठीक है? कैसे बढ़ जाती है? डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ O2 इंक्रीजेज ऑलमोस्ट 3-fold ड्यूरिंग एक्सरसाइज. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियक आउटपुट बढ़ती है,
जो सिचुएशन अभी हम डिस्क्राइब कर रहे थे, तो इन दैट सिचुएशन डिफ्यूजिंग कैपेसिटी फॉर O2 इंक्रीजेज ऑलमोस्ट 3-4 ड्यूरिंग एक्सरसाइज। कैसे? एक चीज, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ कैपिलरीज पार्टिसिपेटिंग इन द डिफ्यूजन। क्या कहा था हमने कि एक तो जो डॉर्मेंट कैपिलरीज हैं वो ओपन हो जाती, ठीक है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देती। दूसरी बात, जो कैपिलरीज ऑलरेडी काम कर रही हैं वो डायलेट कर जाती, ठीक है, जो कैपिलरीज ऑलरेडी काम कर रही हैं वो डायलेट कर जाती, ठीक है। सो दे अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इजीली, ठीक है। सो एक और फैक्टर जो इसमें है, एक और चीज जो हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ी थी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो में भी पढ़ी थी, और हमने जोन्स में भी, जब हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ी थी तो हमने जोन्स भी पढ़े थे, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3 ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। जोन 1 में क्या प्रॉब्लम थी कि जो बेस ऑफ द लंग थी उसमें तो ब्लड था, लेकिन जो एपेक्स ऑफ द लंग था वहां पे ब्लड बहुत कम जा रहा था, इसलिए वहां की वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो डिस्टर्ब थी। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जोन 3 सर्कुलेशन आ जाती है, जिसमें कि ब्लड जो है वो बेस में और एपेक्स में एक ही फ्लो के साथ जा रहा होता है। तो इस सूरत में क्या होगा, देयर वुड बी नियरली आइडियल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इन द अपर पार्ट ऑफ द लंग्स एज वेल, ठीक है। So diffusion at rest is completed in first 1/3 of the length of the capillary, and rest of the 2/3 is utilized in the exercise. ठीक है, अब ये बात भी समझ आ गई कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ती है। एक तो इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द कैपिलरीज हो जाती है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन एक्टिव डिफ्यूजन, और दूसरा जो लंग का जो एपेक्स था, लंग का जो अपर पार्ट था, जहां पे कि ब्लड एट रेस्ट नहीं जा रहा था, वहां ड्यूरिंग एक्सरसाइज रेस्ट ब्लड जो है वो जाना शुरू कर देता, और वहां पे भी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो आइडियल हो जाती, ठीक है। सो दैट इज व्हाई डिफ्यूजन एट रेस्ट इज कंप्लीट इन फर्स्ट 1/3 लेंथ ऑफ द कैपिलरी, एंड द रेस्ट 2/3 इज यूटिलाइज्ड इन द एक्सरसाइज। अच्छा जी, अब ये एक और उसने हमें एक छोटा सा हमें ग्राफ दिखा रहा है। इसमें हमें दिखा ये रहा है, अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो बेसिकली इसमें उसने दिखाया है हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब वो हमें दिखा ये रहा है कि डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सर्कुलेशन में जो है वो पार्शियल प्रेशर क्या होता है। जब तक सिस्टेमिक वीनस ब्लड है तो पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 है। जैसे ही ये पल्मोनरी कैपिलरीज में एंटर हुआ तो एल्वियोलाई से क्योंकि ऑक्सीजन इसमें ऐड होना शुरू हो गई, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, और ये 104 तक चला गया, ठीक है। नाउ पल्मोनरी कैपिलरीज से जब ये निकला और सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड में ये आ गया, ये जो ब्लड है, ठीक है, ये किस में आ गया, अब ये सिस्टेमिक आर्टीरियल पार्ट ऑफ या सेगमेंट ऑफ सर्कुलेशन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो एक लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक चीज होती है वीनस एडमिक्सचर। वो कैसे बनता है कि जो 2% ऑफ कार्डिक आउटपुट है, टोटल कार्डिक आउटपुट, दैट सप्लाइज द टिश्यू, द एक्चुअल टिश्यू ऑफ द लंग, ठीक है। वो गैसेस एक्सचेंज में नहीं वो पार्ट प्ले करता, वो 2% ऑफ कार्डिक आउटपुट जो है, बट दैट गोज टू सप्लाई दी पैरेन्काइमा, दैट गोज टू सप्लाई द पैरेन्काइमा और टिश्यू ऑफ द लंग, एक्चुअल टिश्यू ऑफ द लंग। तो जब वहां से वो उसको सप्लाई करके वो आता है तो ऑफ कोर्स वो डीऑक्सीजनेट हो गया होता है, ठीक है। तो जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस आर्टीरियल ब्लड के साथ मिक्स होता है तो ये उसके पार्शियल प्रेशर को इनिशियली 100 से 95 पे ले आता है, 104 से 95 पे ले आता है, ठीक है। तो ये वो शंट ब्लड है। शंट ब्लड हम इसको क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट डिड नॉट टेक पार्ट इन द गैसियस एक्सचेंज, रादर इट वाज यूटिलाइज्ड टू सप्लाई द पैरेन्काइमा ऑफ द लंग। और जब इसने पैरेन्काइमा ऑफ द लंग को सप्लाई किया तो इट मींस कि इसमें मेटाबॉलिज्म था, वहां पे पैरेन्काइमा ऑफ लंग में उसके सेल्स में मेटाबॉलिज्म हुआ, और मेटाबॉलिज्म की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वो ये लेके वापस आ रहा था, और ये वापस आके किस में ऐड हो गया, सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड में।
और सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर था ये उसको कहाँ से 104 से 95 पे ले आया, ठीक है। तो इसके बाद ये थ्रू आउट जब तक ये सिस्टेमिक सेगमेंट में रहता है आर्टीरियल सर्कुलेशन के, तो ये 95 ही रहता है, ठीक है। इसके बाद अब ये आगे सिस्टेमिक कैपिलरीज में चला गया। सिस्टेमिक कैपिलरीज इसको लेके कहाँ जा रही हैं? टिश्यूज के पास, ठीक है। इसका मतलब है कि अब सिस्टेमिक कैपिलरीज से ऑक्सीजन निकल के टिश्यूज को मिलनी शुरू हो जाएगी, तो इसकी वजह से इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। एंड बिफोर इट एंटर्स द सिस्टेमिक वीनस ब्लड, जो कि ये था इनिशियल वाला सेगमेंट हमारा, फिर वही सेगमेंट आ गया, तो ये वही 40 mmHg पे पहुंच जाता है, बिकॉज इट गिव्स ऑफ ऑल इट्स ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। क्योंकि देखो एल्वियोलाई से ब्लड का ऑक्सीजन लेने का मकसद क्या था कि इट शुड प्रोवाइड इट टू, इट शुड टेक इट टू टिश्यूज वेयर इट इज रिक्वायर्ड, जहां उस ऑक्सीजन की जरूरत थी, ठीक है। तो बाय द टाइम इट रीचेज दैट सिस्टेमिक वीनस ब्लड, so again its partial pressure has gone down to 40 millimeters of mercury, ठीक है। तो ये वो एक डायग्राम है जो कि हमें ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर्स बता रही है इन डिफरेंट सर्कुलेटरी सेगमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये आगे काम आएंगे हमारे, ठीक। अच्छा जी, अब आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड। बहुत सारी डायग्राम्स हैं छोटी छोटी जो समझने वाली है, ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, और साथ साथ मैं आपको उसकी जो उसके रिलेटेड जो थोड़ा बहुत थ्योरी है वो भी बताता जाऊंगा। अच्छा जी, अब वो कहता है कि हम एक डायग्राम देखेंगे अभी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड, ठीक। आर्टीरियल ब्लड में ये तो वही जो भी मैंने आपको ये वीनस एडमिक्सचर वाला बताया आप, ठीक है। ये आर्टीरियल ब्लड में ये तो वो है, ये देखिए 104 इन पल्मोनरी कैपिलरीज, जब ये पल्मोनरी कैपिलरी से निकलता है तो 104 इसका पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। 2% ब्लड सप्लाइंग द लंग टिश्यू, जैसे मैंने आपको बताया शंट फ्लो है, गेट्स डीऑक्सीजनेटेड और उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 पे आ जाता है। जब ये 40 वाला उस 104 के साथ मिलता है, ठीक है, जिसे हम वीनस एडमिक्सचर कहते हैं, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द होल आर्टीरियल ब्लड को कहाँ ले आता है? सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड को 95 पे ले आता है, ठीक है। ये बात तो हो गई। अब हम देखते हैं एक और डायग्राम, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द पेरिफेरल कैपिलरीज इनटू द टिश्यू फ्लूइड। क्योंकि हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में आना और एल्वियोलाई से ब्लड में आने का मकसद ही यही है कि उसे टिश्यूज तक पहुंचाया जाए, ठीक है। अब टिश्यू जो है, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इस डायग्राम के कुछ 2-3 कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें पहले समझ लेना चाहिए। आपकी गाइटन की डायग्राम है, ये एक आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी है। ये कौन सी कैपिलरी है? सिस्टेमिक कैपिलरी है, ये पल्मोनरी कैपिलरी नहीं है, ठीक है। ये सिस्टेमिक कैपिलरी है जो कि ब्लड लेके आ रही है, जिसका कि पार्शियल प्रेशर 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, ठीक है। जब ये टिश्यू पे पहुंचती है तो आगे अब उसने टिश्यू में हमें 2 चीजें दिखाई हैं। एक उसने क्या दिखाया है? एक उसने हमें टिश्यू के अंदर का पार्शियल प्रेशर दिखाया है कि टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है। वो सिर्फ 23 ऑन एवरेज, ये 5 से 40 तक हो सकता है, वेरी करता है, ठीक है, लेकिन ऑन एवरेज ये 23 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ठीक है। तो टिश्यू के अंदर का जो पार्शियल प्रेशर है वो 23 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, और टिश्यू के सराउंडिंग जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला स्टेप क्या होगा, अगर हम इसको अब फिर बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करें तो पहला स्टेप क्या था? एंट्री ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द एल्वियोलाई। दूसरा स्टेप क्या था? एंट्री ऑफ एयर फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू द ब्लड इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज, ब्लड में आ गया, ठीक है। नाउ तीसरा स्टेप क्या है? एंट्री ऑफ एयर और ऑक्सीजन, रादर एयर नहीं कहना चाहिए और अब ऑक्सीजन कहना चाहिए। एंट्री ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आर्टीरियल कैपिलरी इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड व्हिच इज सराउंडिंग द टिश्यू, ठीक है। उसमें कितना है? 40 है।
तो कितना डिफरेंस है 95 से 40, कितना डिफरेंस बना अभी? मैथ क्या कहता है आपका? 55 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, अगेन विच इज अ ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो बड़े इजीली कैपिलरीज से, आर्टीरियल कैपिलरीज से बड़े इजीली इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाती। और यहां से आगे कितना डिफरेंस है? जो आगे फोर्थ स्टेप आ गया, आखिरी स्टेप आ गया, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है और 23 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑन एवरेज टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो अगेन फिर अभी भी यहाँ पे 17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का डिफरेंस है, ठीक है, अभी भी यहाँ पे 17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का डिफरेंस है, ठीक है। So again, the 17 millimeters of mercury difference is much more than what is required for the diffusion from the interstitial fluid into the tissue. वो सिर्फ 1 से 3 है। तो इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे भी नेचर ने आपको ऑलमोस्ट कोई 14 से 17 या 16 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का सेफ्टी फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको इसी डायग्राम में दोनों बातें बता दी हैं। आपकी किताब में डायग्राम एक है लेकिन इसको एक्सप्लेन 2 जगह पे किया गया है, 2 डिफरेंट पैराग्राफ्स में किया गया है। मैंने आपको वो दोनों पैराग्राफ्स इकट्ठे एक्सप्लेन कर दिए हैं क्योंकि सेंस इसी की बनती है। सीक्वेंस जा रहा है ना कि आर्टीरियल ब्लड से इंटरस्टिशियम में आया, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें आया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आगे कहाँ गया? टिश्यू में चला गया, ठीक है। तो ये मैंने एक ही पैराग्राफ में आपको या एक ही गो मैंने आपको ये दोनों बातें बता दी, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें कुछ मुश्किल बात, ठीक है। अगर आप इस फिगर की जो डायग्राम की जो डिस्क्रिप्शन उसने नीचे लिखी हुई है, डिफ्यूजन ऑक्सीजन फ्रॉम अ पेरिफेरल टिश्यू कैपिलरी टू द सेल्स, PO2 in that interstitial fluid is 40 mmHg and in the tissue cells is 23 mmHg, ठीक है। तो इसी पार्शियल प्रेशर के हिसाब से ये जो है वो आगे डिफ्यूज होता जाए, ठीक है। अच्छा जी, ये तो वही है जो सारा भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये सारी वही चीज है, इसमें कोई नई बात नहीं, ठीक है। तो एक और बात जिसमें देखने वाली है वो ये है कि क्योंकि ये जो आर्टीरियल कैपिलरी थी इसने अपना सारी ऑक्सीजन गिव अप कर दी, किसको? इस फ्लूइड को, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, ठीक है, और इसने अपने आप को उसके साथ इक्विलिब्रेट कर लिया। तो इट मींस कि ये 95 mmHg जो ये पार्शियल प्रेशर लेके आ रही थी, आफ्टर गिविंग अप ऑल इट्स ऑक्सीजन, इसका अपना पार्शियल प्रेशर वीनस एंड ऑफ आर्टीरियल कैपिलरी, ये आर्टीरियल कैपिलरी का ही वीनस एंड है, ये आर्टीरियल कैपिलरी का आर्टीरियल एंड था, ठीक है, आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी था ये, और ये उसका वीनस एंड है, वीनस एंड ऑफ कैपिलरी। तो यहाँ पे एज इट गिव्स अप all its oxygen to interstitial fluid which is surrounding the tissue, तो उसके बाद इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया, ये हमारा बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब वो एक और डायग्राम हमें दिखा रहा है जिसमें कि वो हमें दिखा ये रहा है बेसिकली कि इफेक्ट ऑफ ब्लड फ्लो एंड रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑन टिश्यू PO2। देखो जितना ज्यादा ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। इस ग्राफ को तो हम बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ अपनी कॉमन सेंस यूज करें कि अगर किसी जगह पे ब्लड फ्लो बढ़ गया है, आर्टीरियल ब्लड फ्लो किसी जगह पे बढ़ गया है, तो जाहिर है वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर किसी जगह पे ब्लड फ्लो उतना ही है और कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गई, ठीक है, तो ऑफ कोर्स उस जगह का पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाए, क्योंकि वहां ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई, ठीक है। तो ब्लड फ्लो के बढ़ने से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा और ऑक्सीजन कंजम्पशन के बढ़ने से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर
कम होगा। अब यही दो बातें हैं जो उसने इसमें दिखाई हैं, ठीक है। इस ग्राफ इसके 3 कर्व्स हैं इस चार्ट के, और इन तीनों चार्ट्स में उसने यही बात जो है वो एक्सप्लेन की है, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये बात कैसे एक्सप्लेन हुई है यहाँ पे। सबसे पहले आप ये जो सॉलिड कर्व है इसको, सबसे पहले तो आप ये देखें कि एक्स एक्सिस पे ब्लड फ्लो है, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल उसने किसको लिया? 100%। दिस इज द नॉर्मल ब्लड फ्लो, ठीक है। ऑन दी, और बाकी जो है उससे आगे वो अब इनटू नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है। नाउ ऑन द वाई एक्सिस इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड PO2, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो वो कितना, हमने कहा वो कितना होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का पार्शियल प्रेशर? 40 होता है, ठीक है। अभी यही देखा ना हमने पीछे, 40 mmHg होता है। तो अगर हम यहाँ 100% ब्लड फ्लो से एक लाइन ड्रॉ करें इस सॉलिड कर्व पे, ये जो सॉलिड कर्व सॉलिड रेड कर्व है, तो वो यहाँ आता है, ठीक है, इस A पॉइंट पे आता है। इसी तरह अगर हम 40 से एक लाइन ड्रॉ करें तो वो कहाँ आता है? A पॉइंट पे आती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट 40 mmHg, या हम ऐसे कर लें कि एट 100 blood flow, which is the normal blood flow, which is the ideal blood flow at rest, normal blood flow, a partial pressure of 40 mmHg is maintained. यानी कि अगर ब्लड फ्लो 100 होगा तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 40 mmHg होगा। अगर हम इस ब्लड फ्लो को 400 टाइम्स बढ़ा दें, तो यहां आ गए, हम इस पॉइंट पे आ गए। अब यहां से हम अगर इसी कर्व पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये पॉइंट कहां बनता है? ये बनता है। और अगर हम यहां से एक लाइन अब इस लाइन पे ड्रॉ करें, पार्शियल प्रेशर वाली लाइन पे, तो ये हमें देता है 66%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ब्लड फ्लो को 4 फोल्ड बढ़ा दें या 400% बढ़ा दें, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर कितना बढ़ जाएगा? 40 से उठ के 66% पे चला जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सी पॉइंट को देखो, वो ये शो कर रहा है कि अगर हम ब्लड फ्लो कम करते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर हमने ब्लड फ्लो को यहाँ ले आए, हम ये अराउंड कोई मेरा ख्याल है 30 बनता है, ठीक है, विच इज वे बिलो नॉर्मल, दी नॉर्मल ब्लड फ्लो। तो आप ये देखिए कि यहाँ से जब हम इसी कर्व पे, सॉलिड कर्व पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो यहाँ मिलती है, ठीक है। यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पार्शियल प्रेशर, इंटरस्टिशियल पार्शियल प्रेशर वाले एक्सिस पे, तो वो हमें क्या देगा? ये अराउंड हमें कोई 15 के अराउंड हमें ये पार्शियल प्रेशर दे रहा। तो जब हमने ब्लड फ्लो कम किया तो पार्शियल प्रेशर, अगर इतना कम किया हमने तो पार्शियल प्रेशर 15 रह गया। जब हमने ब्लड फ्लो को 400% बढ़ा दिया या 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो पार्शियल प्रेशर जो था वो 40 से उठ के 66 पे चला गया, और यहाँ पे 40 से कम होके 15 पे आ गया, ठीक है। ये तो एक इस पूरे ग्राफ का इसका एक एस्पेक्ट है। अब दूसरी बात आ जाती है कंजम्पशन की। वो कहता है कि अगर हम कंजम्पशन को 4 टाइम्स बढ़ा दें देन नॉर्मल, ऑक्सीजन कंजम्पशन को हम 4 टाइम्स बढ़ा दें देन नॉर्मल, तो क्या होता है? पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ये देखो, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कर्व ये चल रहा था, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कर्व बहुत नीचे आ गया है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर कर्व जो है वो, पार्शियल प्रेशर जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने उसकी कंजम्पशन बढ़ा दी है, वहां से ऑक्सीजन कम हो गई है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी कम ही होगा। अब वो कहता है कि अगर हम उसको 4 टाइम्स कम कर दें नॉर्मल से कंजम्पशन को, तो पार्शियल प्रेशर भी देखो कितना ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर भी, उसका कर्व देखो कितना ऊपर चला गया, ठीक है। तो वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन कि जब भी हम ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे तो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, और ये हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में इसके ऑपोजिट हो जाना है। ये याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड में इसके ऑपोजिट हो जाना है,
ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। जब भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, जब भी ब्लड फ्लो कम होगा पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। जब भी हम ऑक्सीजन की कंजम्पशन बढ़ाएंगे, जब भी हम ऑक्सीजन की कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। जब भी हम ऑक्सीजन की कंजम्पशन कम करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल बातें नहीं है इसमें, बस ये बने ऐसे हुए चार्ट के थोड़ा सा लगता है कि ये तंग करेंगे। अच्छा जी, तो ये वही आगे इन्हीं चीजों की एक्सप्लेनेशन है। इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो रेजेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड PO2, इंक्रीजिंग टिश्यू मेटाबॉलिज्म डिक्रीजेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड PO2। टिश्यू मेटाबॉलिज्म बढ़ने का क्या मतलब है कि उसकी कंजम्पशन हमने बढ़ा दी। ठीक है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन बढ़ा दी। ठीक है, सो टिश्यू PO2 किससे डिटरमिन होता है? डिटरमिन्ड बाय अ बैलेंस बिटवीन रेट ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यूज एंड रेट ऑफ O2 यूटिलाइजेशन। यानी कि कितना ब्लड कितनी ऑक्सीजन लेके उस टिश्यू में जा रहा है और उस टिश्यू में उस वक्त रेट ऑफ O2 यूटिलाइजेशन क्या है। ये वो दो चीजें हैं जिन्होंने के पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अ टिश्यू जो है वो डिटरमिन करना। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। ये तो वही अब मैं आपको बता चुका हूँ ये सारा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में आपको सारी वही 66% वाली ये मैं आपको बता चुका हूँ। वो मैंने आपको डायग्राम से समझा दी थी, ये उसको लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो आप डायग्राम से समझ लेना सबसे बेहतर होता है बजाय इसके कि आप थ्योरी रटते रहें। ठीक है, डायग्राम से समझना इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू स्टिक इन योर माइंड। वही रह जानी है आपके माइंड में। आगे भी वही आ गया, इंक्रीजिंग टिश्यू मेटाबॉलिज्म, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये भी बात हो गई कि जी वो किस किस चीजों से वो होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम पेरिफेरल कैपिलरीज टू टिश्यू सेल्स। ठीक है, अब ये मैंने आपको कहा था कि उसने अलग डिस्कस किया हुआ है, मैंने आपसे ये वहीं डिस्कस कर लिया था। ठीक, इसी डायग्राम में फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द टिश्यू सेल्स। तो ये मैंने आपसे इसीलिए पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो क्योंकि डायग्रामेटिकली समझा देना बेहतर होता है एज कंपेयर टू स्लाइड के ऊपर जो लाइनें लिखी हुई हैं उनको बताना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डायग्रामेटिकली बताना जो है आसान हो जाता है और समझना भी आसान हो जाता है। सो दैट इज वाई मैंने आपको तब भी ये बताया था कि आपका अलग डिस्कस हुआ है, लेकिन मैं आपको अभी ही ये बता दूं। ठीक है, तो इसका मतलब वी आर डन विद दिस स्लाइड एज वेल। ठीक है, ये वही जो मैंने आपको बताया था कि 1 to 3 mmHg of O2 pressure is normally required for full support of the chemical process that use oxygen in the cell. Even this low intracellular PO2 of 23 mg is more than adequate and provides a large safety factor. ये बात मैंने आपको अभी 3-4 स्लाइडें पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने इसीलिए आपको ये बात तभी बता दी। ठीक है जी, अब हम आगे डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू cells into capillaries and from pulmonary capillaries into alveoli। ये अब रिवर्स ऑर्डर चल पड़ा है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का रूट और कार्बन डाइऑक्साइड का रूट जो है ये रिवर्स है। ठीक है, ये दोनों रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे और इनके पार्शियल प्रेशर्स भी अकॉर्डिंगली रिवर्स ऑर्डर में ही चलते हैं। ये भी बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, बल्कि विद फिगर्स विद स्टैट्स बता चुका हूं। ठीक हो गया बच्चे? तो अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बिहेव करती। तो जब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई टिश्यू में तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसकी वजह से टिश्यूज में जो इंट्रासेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ एलिवेटेड टिश्यू सेल कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर फ्रॉम द सेल्स इनटू द कैपिलरीज, यानी कि ये सेल्स से टिश्यू के सेल्स से किस में आएंगे? कैपिलरीज में आएंगे। वो कौन सी कैपिलरीज? जो कि ब्लड लेके इस तक आ रही हैं।
कहाँ से लेके आ रही हैं? लंग से लेके मतलब हार्ट से लेके आ रही हैं, और अब उन्होंने वापस कहाँ जाना है? लंग्स की तरफ आगे। ठीक है, नाउ ये कैपिलरीज जो कि हार्ट से आ रही थी, उन्होंने CO2 ले ली टिश्यू से, और अब ये आगे किधर को चल पड़ी हैं? कैरिड बाय द ब्लड टू द लग। क्यों? क्योंकि ये गई राइट एट्रियम में, सारा कुछ लेके आगे वेन्स में गई, वेन्स आगे राइट एट्रियम में गई, और आगे राइट एट्रियम ने इस ब्लड को कहाँ फेंक दिया? लंग्स की तरफ। ठीक है, और लंग्स में क्या हुआ कि ये जो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था, it will diffuse, इस यहाँ से carbon dioxide will diffuse from the pulmonary capillaries into the alveoli and is expired, और alveoli में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो, ठीक है, वो और कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां से आगे वो कहाँ चली जाएंगी? एटमॉस्फेरिक एयर में चली जाएंगी। ठीक है, तो ये सारा रिवर्स ऑर्डर है, पार्शियल प्रेशर्स का भी और उनके राउट्स का भी। उनके रूट्स भी उल्टे चलेंगे और उनके पार्शियल प्रेशर्स भी उल्टे चलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें यही लिखा हुआ है, एट ईच पॉइंट इन द गैस ट्रांसपोर्ट चेन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इन द डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट टू द डिफ्यूजन ऑफ O2। ठीक है, हाँ, सिर्फ एक फर्क है कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन के इस चीज में, वैसे तो वो उल्टे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिफ्यूज अबाउट 20 टाइम्स एज रैपिडली एज ऑक्सीजन। ये बात हम अपने किस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं? कोई बच्चा बताएगा? जहां हमने क्या देखा था? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट देखे थे, जहां हमने डिफ्यूजिंग कैपेसिटी देखी थी। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये दोनों चीजें कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से 20 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए ये बात मैंने तब भी आपसे एक्सप्लेन की थी, आज भी कर रहा हूं, कि इसी वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हैज diffuses much more at least 20 times rapidly as compared to oxygen, तो इसीलिए इसमें पार्शियल प्रेशर्स जो हैं वो बड़े, पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस जो हैं वो बड़े कम होते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हमें पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस ज्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि बहुत ज्यादा उसकी डिफ्यूजिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए उसमें थोड़े पार्शियल प्रेशर से भी काम चल जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये एक और डायग्राम आई है, ये क्या दिखा रही है हमें? ये हमें ये दिखा रही है, वहां हमने कहां से स्टार्ट किया था कि ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड में कैसे आती है। अब क्योंकि अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, इसलिए रिवर्स ऑर्डर चलेगा। ठीक है, और और क्या होगा, हम देखेंगे कि टिश्यू से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कैसे आती है कार्बन डाइऑक्साइड, किस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के अंडर आती है, और फिर टिश्यू फ्लूइड से, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो आर्टीरियल जो कैपिलरी है उसमें ये कैसे आती है। ठीक है, ठीक, तो अब आप अगर ये देखें तो ये जब हमने वो डायग्राम देखी थी तो हमने क्या देखा था? हमने यहां से स्टार्ट किया था और अंदर की तरफ गए थे। अब अंदर से स्टार्ट करेंगे और बाहर की तरफ आएंगे, तो हम देखते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो मैक्सिमम कहां पे है? टिश्यू के अंदर है, और ऑक्सीजन का हमने देखा था कि यहाँ पे मिनिमम था, 23 था, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम है और 46 है। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा था कि जो पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वो 40 था, और इसका 45 है। यानी कि आप ये देखें कि ड्यू टू द हाई डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, सिर्फ 1 mmHg का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस जो है बिटवीन द टिश्यू एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इट इज सफिशिएंट, वो काफी है फॉर अ सेटिस्फैक्टरी एक्सचेंज ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब हम अगले स्टेप पे चलें तो कार्बन डाइऑक्साइड ने अब नेक्स्ट कहाँ जाना है, फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द आर्टीरियल ब्लड। ठीक है, उसने आर्टीरियल ब्लड में जाना है। तो अब आर्टीरियल ब्लड में अगर उसने जाना है तो आर्टीरियल ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो 40 है। ठीक है, और इसका पार्शियल प्रेशर जो, जबकि ये जो आर्टीरियल सर्कुलेशन में जो पार्शियल या आर्टीरियल कैपिलरीज में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन था वो कितना था, 95 था। ठीक है, और यहाँ कितना है, सिर्फ 40 है। तो जब ये 45 है और ये 40 है तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड ने यहाँ से यहाँ डिफ्यूज करना है, एंड दैट वुड बी डैम इजी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजिबिलिटी पहले ही बहुत ज्यादा है, 20 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो a partial pressure difference of 5 mmHg is more than sufficient to cause this diffusion। ठीक है, अच्छा जी, अब हम अगली डायग्राम पे चलते हैं। तो इसमें हमने एक बात क्या पढ़ी कि इंट्रासेलुलर PCO2 46 था, इंटरस्टिशियल PCO2 जो था वो 45 था। सो दस देयर इज ओनली 1 mmHg प्रेशर डिफरेंशियल। अब अगली बात मैं आपसे कर चुका हूँ जो लिखी हुई है कि PCO2 ऑफ द आर्टीरियल ब्लड एंटरिंग द टिश्यू इज 40 mmHg एंड PCO2 ऑफ द वीनस ब्लड लीविंग द टिश्यू इज 45 mmHg। ठीक है, आया ये क्या लेके था यहाँ पे, 40 mmHg, यहाँ से 5 इसमें ऐड हो गया और ये लेके क्या जा रहा है, 45 mmHg। ठीक है, so the tissue capillary blood comes almost exactly to equilibrate with the interstitial PCO2 of 45 mmHg। so इस 45 ये 40 जो है ये इस 45 mmHg के साथ इक्विलिब्रेट करके ये 45 mmHg का प्रेशर पार्शियल प्रेशर शो करना शुरू कर देते। ठीक है, तो ये भी आसान डायग्राम है। तीसरी चीज जो वो भी वैसे हम कर चुके हैं, PCO2 ऑफ द ब्लड एंटरिंग द पल्मोनरी कैपिलरीज एट द आर्टीरियल एंड 45 mmHg, PCO2 ऑफ द एल्वियोलर एयर इज 40 mmHg। ठीक है, ऑफ द एल्वियोलर एयर इज, जो पहुंच रहा है वहां पे पार्शियल प्रेशर थ्रू आर्टीरियल ब्लड या थ्रू पल्मोनरी कैपिलरीज जो लंग्स में पहुंच रहा है वो कितना है, 45 mmHg, और जो एल्वियोलर एयर है उसका कितना है, 40 mmHg। ठीक है, तो अगेन क्योंकि आर्टीरियल ब्लड में ज्यादा है, एल्वियोलर में कम है, तो इसलिए 45 mmHg से एज पर द लॉ ऑफ फिजिक्स जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ग्रेडियंट जो है वो फ्रॉम द ब्लड टू द एल्वियोलाई है। जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे तो वो इट वाज फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू द ब्लड। अब क्योंकि ये सारा रिवर्स ऑर्डर है इसलिए इट वुड बी फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वियोलाई। ठीक है, तो एल्वियोलाई में 40 mmHg है, जो आर्टीरियल ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg है। तो अब a partial pressure difference of 5 mmHg would be good enough to cause the diffusion of carbon dioxide from the arterial blood into the alveoli। ठीक है, ठीक हो गया। तो इस तरह से एल्वियोलाई से फिर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर एक्सप्रेस हो जाती है। ठीक है, बाहर एक्सपायर हो जाती है। ठीक, तो ये थी कुछ डायग्राम जो हमने देखी। अच्छा जी, अब एक और बात जो ये बिल्कुल वो ये कौन सी डायग्राम है, ये आपको मैं दिखाऊं, जो ऑक्सीजन वाली ये डायग्राम थी, ये ऑक्सीजन वाली डायग्राम थी ना, अगर आप इसको बिल्कुल उल्टा कर लें, ठीक है, अगर आप इसको बिल्कुल उल्टा लें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की डायग्राम बन जाती है। अगेन प्रूविंग कि एवरीथिंग इज हैपनिंग नाउ इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, उस डायग्राम को और इस डायग्राम को अगर आप कंपेयर करें तो ये दूसरे बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, सो इट इज
diffusion of carbon dioxide from the pulmonary blood into the alveolus, या भी जिसकी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, ठीक है, ये वाली, ठीक, ये इसी की बात हो रही। तो इसमें अगर आप देखें तो क्या नजर आ रहा है आपको कि ये ऊपर ये पल्मोनरी कैपिलरी चल रही है, उसके ऊपर ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलस है, और नीचे उसने ये ग्राफ दिखाया है इनके दरमियान में रिलेशन का। तो अगर आप देखें कि बाय द टाइम द ब्लड रीचेस द 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द कैपिलरी, तो अगेन ये एक्सचेंज जो है ये पूरी हो गई होती है, ठीक है। ये वैसे आज से ये जो इसका था ना 12th एडिशन, 12th था या 11th था प्रोबेबली, जिसमें ये गलती थी कि ये जो एरोज थे ये इसने इक्वल नहीं किए हुए थे एट 1/3 ऑफ कैपिलरी, और मुझे ये लग रहा है कि अभी भी इसने ये नहीं किए हुए। ऑक्सीजन वाले में कर दिए हैं, पहले उसमें भी नहीं होते थे। ये देखो ये जो कर्व था जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ये गाइटन की एक मिस्टेक थी जो कि अभी भी इस, ये देखो यहाँ उसने बाय द 1/3 उसने दोनों एरोज इक्वल कर दिए हैं, लेकिन और ये पहले ये भी नहीं होते थे, 11th एडिशन में ये भी नहीं होते थे, अब तो 14th आ गया खैर। लेकिन अगर आप अब इसको देखें तो यहाँ बाय द 1/3 अभी भी इनमें डिस्क्रिपेंसी है, इनको इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, दे शुड बी इक्वल बाय द 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द कैपिलरी, दे शुड बी इक्वल, ठीक है, जो इसने नहीं किए हुए अभी भी। तो थोड़ी सी अभी एक बड़ा माइनर सी अभी भी इसमें एक लूप होल है इसमें, इस ग्राफ में, लेकिन आप इस बात को समझ लें कि बाय द टाइम इट रीचेस द 1/3 तो गैसेस एक्सचेंज कंप्लीट हो गई होती है, और ये एरोस जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल हो गए होते हैं, ये नेट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो कंप्लीट हो गई होती है बाय दिस टाइम, देयर इज नो नेट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो बस वो यही दिखा रहा है बेसिकली कि जब यहाँ एंटर होती है पल्मोनरी कैपिलरी में ब्लड एंटर होता है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 45 होता है, जब वो यहाँ से निकलता है तो वो इसके साथ इक्विलिब्रेट कर गया होता है, 40 रह गया होता है, क्योंकि ये 45 से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड इधर एल्वियोलाई में चली जाती है और वहां से आगे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में एक्सपायर कर दी जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और बात मैं आपको एक और चीज हम आगे अब डिस्कस करते हैं। ये बिल्कुल वही डायग्राम जो हमने उसकी देखी थी ऑक्सीजन की, उसी का रिवर्स अब हम ये देखेंगे, ये वाली डायग्राम, ठीक है, ये बिल्कुल इसी का रिवर्स अब हम देखेंगे। पहले इसका रिवर्स देखा था हमने, अब हम इस डायग्राम का रिवर्स देखेंगे। इस डायग्राम को एक बार फिर गौर से देखें और आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में ये बिल्कुल उलट जाएगी। चीजें यही हैं, ब्लड फ्लो है और उसकी मेटाबॉलिज्म की इंक्रीज है, ठीक है, या ब्लड फ्लो है या मेटाबॉलिज्म का इंक्रीज है, ठीक। ये देखें, अब आप इसमें देखें कि इसमें वो हमें क्या शो कर रहा है। इसमें एक्स एक्सिस पे जो है वो ब्लड फ्लो है, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल जैसे उसमें था, और 100% को हम नॉर्मल लेते हैं। इसी तरह जो वाई एक्सिस है उस पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के पार्शियल प्रेशर में, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें किसका पार्शियल प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था, ठीक है। तो अब अगर हम इसको लेके चले आगे तो हम ये देखते हैं कि अगर हम इस सॉलिड कर्व को देखें जो कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म पे चल रहा है, देखो इसमें जरूरी ये है कि इसमें हमने ब्लड फ्लो को चेंज करना है सॉलिड कर्व में, जैसे हमने ऑक्सीजन में किया था, और मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखना था, यानी कि उसकी ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन को नॉर्मल को स्टेबल रखना था। और इन ग्राफ्स में ये जो डॉटेड हैं इनमें हमने ब्लड फ्लो को स्टेबल रखना है और मेटाबॉलिज्म को चेंज करना है, और वहां भी हमने यही किया था, ठीक है। ये बस मैं आपको ये बता दूं कि ये ग्राफ सिर्फ देखने में कॉम्प्लिकेटेड हैं, एक दफा इनकी समझ आ जाए तो इनमें कोई कॉम्प्लिकेशन बाकी नहीं रह जाती। तो ये हमारा लास्ट ग्राफ है आज का जो हमने समझना है, उसके बाद वी आर डन। वैसे तो 2 बजे के बाद आपकी कोई क्लास वगैरह तो होती नहीं है, अगर मैं आपको पढ़ाई छोड़ूं और तो कितनी अच्छी बात हो। डू यू एग्री?
चलें बस वैसे लगना मुझे 1 मिनट ही है इस पे, ये जो डायग्राम है, क्योंकि ये बात आपको ऑक्सीजन की समझ आ चुकी है, उसी को मैंने रिवर्स करके आपको अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समझा देना। ठीक है, तो अगर हम ये देखें सॉलिड कर्व, तो हम देखते हैं कि अगर 100% नॉर्मल ब्लड फ्लो है, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉर्मली जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितना था, 45 था, तो ये 45 आ गया। तो 40 अगर हम 100% से इस कर्व पर लाइन ड्रॉ करें और फिर हम इस कर्व से एक लाइन इधर ड्रॉ करें तो ये 45 आ जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर ब्लड फ्लो इज 100%, दैट इज नॉर्मल, तो partial pressure of carbon dioxide is in the interstitial fluid is 45 mmHg। अगर हम इस ब्लड फ्लो को बढ़ा दें तो क्या होगा? अगर हमने इस ब्लड फ्लो को बढ़ा दिया तो इसका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, क्योंकि इट विल टेक अवे मोर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखें, अगर हमने इसको 6 टाइम्स बढ़ा दिया तो ये पॉइंट सी पे आ गया, और यहां से अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो ये 41 पे आ जाता है तकरीबन। ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड PCO2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, वहां हमने क्या देखा था कि अगर हम ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा। यहां हमने क्या देखा कि अगर हम ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है, और अगर हम ब्लड फ्लो कम करते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ गया, 60 से ऊपर चला गया। ठीक है, ब्लड फ्लो कम कर दिया ना हमने, देखो यहाँ बनता है, यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे और फिर यहाँ से यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि अगर हमने उसको 100 से नीचे ले गए, अराउंड 40 के ले गए ब्लड फ्लो को, यानी कि अगर हमने उसको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स कम कर दिया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ गया, क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो गया है। नाउ द ब्लड विल टेक लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम दैट साइड। ठीक है, अच्छा जी, ये बात हो गई। तो ये तो हमने ब्लड फ्लो का इफेक्ट देख लिया। अब हम मेटाबॉलिज्म का भी देख लेते हैं। ये 2 ग्राफ क्या है, मेटाबॉलिज्म के हैं। अगर वो कहता है कि अगर हम 10 टाइम्स मेटाबॉलिज्म बढ़ा दें, अगर हम मेटाबॉलिज्म को 10 टाइम्स बढ़ा दें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म को हमने बढ़ा दिया तो ऑफ कोर्स ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो ये देखें, इसमें ये कर्व भी कितना ऊपर चल रहा है इस नॉर्मल कर्व से। सो इट मींस कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में बढ़ गया। Now coming to the other condition. Now this other condition states, ये हमें क्या डिपेक्ट कर रही है, ये क्या दिखा रही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम ब्लड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो है उसको 1/4 पे ले जाए, यानी कि मेटाबॉलिज्म को 4 टाइम्स कम कर दें देन नॉर्मल जो रेस्ट पे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेटाबॉलिज्म है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाए, क्योंकि हमने मेटाबॉलिज्म कम कर दिया, कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो उसका पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, सो ओके, विद दिस वी फिनिश दिस टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और कल इंशाल्लाह हमने इस चैप्टर को खत्म करना है। ये जरा थोड़ी डायग्राम ज्यादा ट्रिकी थी, इन पे ज्यादा टाइम लग गया। आगे भी 2-3 डायग्राम्स आएंगी जो समझने वाली हैं। ठीक है, बट इंशाल्लाह वी विल टेक केयर ऑफ दिस चैप्टर टुमारो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।